اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ شروع کریں گے زندگانی امام محمد باقر علیہ السلام والسلام۔ امام کی ولادت ہے سن 57 ہجری۔ بہت آسان ہے آپ کی ولادت کا یاد رکھنا۔ عمر مبارک 57 سال، شہادت 114۔ سمجھ میں آئے؟ 57 میں 57 جوڑ دو کتنا ہو جائے گا؟ 57 پلس 57 کتنا ہوگا؟ 114۔ 114 میں آپ کی شہادت۔ پیدا ہوئے سن 57 میں، کتنے سال زندہ رہے؟ 57 سال۔ عمر کتنی؟ السلام علیکم۔ تو دیکھیے مولانا، تو امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں یہ بنیادی بات یاد رہے گی آپ کو۔ 57 میں پیدا ہوئے، 57 سال زندہ رہے، 114 میں آپ کی شہادت۔ اور اماموں میں آپ واحد امام ہیں جو نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جن کے باپ اور ماں دونوں سید ہوں۔ سید ہاں۔ اس لیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت امام حسن حسن علیہ علیہ السلام۔ السلام۔ صحیح ہے۔ امام حسین جی کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کی سجاد علیہ شادی السلام، کس سے ہوئی؟ امام حسن علیہ السلام کی حسن علیہ بیٹی السلام کی جناب بیٹی فاطمہ سے۔ صحیح ہے۔ فاطمہ۔ جس کے نتیجے جی میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آئیے پڑھتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی۔ اور یہ ان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک واحد امام ہے کہ جن کو پیغمبر اسلام نے کیا بھیجا؟ سلام بھیجا ہے۔ سلام یہ بھیجا۔ آپ کو یاد کیا ہے۔ آپ کے مختصر حالات زندگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام 57 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات سن 94 ہجری کے وقت، یہاں 194 دیا ہے جہاں تک مجھے یاد آتی ہے، آپ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 95۔ تبھی نہ ہوتی ہے 35 سال۔ امامت کی مدت آپ کی کتنی ہے؟ 35 سال۔ 35 سال۔ کتنی ہے؟ 35۔ تو 35 سال۔ 60 سے 95 تک 35۔ یہاں انہوں نے 94 کے وقت آپ کی عمر 39 سال تھی۔ آئیے امام زین العابدین علیہ السلام پہ پھر پیچھے پلٹتے ہیں ذرا ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ ان کی ولادت شہادت یہاں کب بتائیے، کوئی آپس میں اختلاف تو نہیں کر دیا انہوں نے؟ کتنی بتائیے دیکھا؟ کیا 50 بتائیے؟ عبد الملک آ جائے گا، بس یہیں کہیں ہے۔ دونوں دیا ہے نا؟ 94 یا 95۔ تب تو ایسے فیصلہ کرنا تو صحیح بات نہیں ہے نا جی۔ یہاں دیکھیے شہر بانو امام زین مدینے میں پیدا ہوئے، اور محرم سن 61 ہجری میں، یہ دیکھیں 94 یا 95 ہجری میں۔ صحیح ہے، شہرت یہی ہے کہ جی آپ کی شہادت کب ہے؟ 95 ہجری میں۔ اور یہاں انہوں نے سیدھے سیدھے کیا کہہ دیا؟ 94 ہجری میں۔ یہ احتیاط ضروری ہے، مجھے ایسے 95 ہی یاد ہے۔
आइए देखिए, कह रहे अपने वालिद इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम की वफात सन 94 या 95 हम करते हैं इसको, ठीक है, के वक्त आपकी उम्र 39 साल थी। आपका नाम मोहम्मद और कुन्नियत अबू जाफर है। क्या? अबू जाफर। कुन्नियत जानते हैं किसको कहते हैं? जो बड़े बेटे के नाम पे, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल हसन। अबुल हसन। सही है। 11वें इमाम की कुन्नियत अबू मोहम्मद। अबुल मोहम्मद। तो अबू जाफर, इसलिए कि छठे इमाम का नाम क्या है? जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तो अबू जाफर है। बाकिर और बाकिरुल उलूम आपके अलकाब हैं। बाकिर सही है या बाकिरुल उलूम। इसीलिए देखें इदारों का नाम क्या लिखा जाता है? बाकिरुल उलूम। आपकी माँ उम्मे अब्दुल्लाह, ये आपकी कुन्नियत है। उम्मे अब्दुल्लाह क्या है? कुन्नियत है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी थी, यानी नाम आपका क्या था? फातिमा। फातिमा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इस लिहाज से आप पहले शख्स थे जो माँ और बाप दोनों की तरफ से फातिमी और अलवी थे। सही है। आपकी इमामत की मुद्दत 18 साल थी। आपने 114 हिजरी में शहर मदीना में वफात पाई और बकी के मशहूर कब्रिस्तान में अपने वालिद माजिद और जद के पास दफन किए गए। यानी पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खबर है, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, फिर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और उसके बाद उसके बराबर में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आपके दौर के खुलफा, हमारे पांचवे इमाम अपनी इमामत के दौर में दर्जिल खुलफा और हुक्मरानों के हम असर थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक 86 से 96 तक। अब यहां ब्रैकेट में मज़कूर साल खुलफा का अहदे हुकूमत है, यानी जितने साल उन्होंने हुकूमत की है। और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, सही है, दोनों अब्दुल मलिक के बेटे हैं, वलीद और सुलेमान। 96 से 99 हिजरी तक कितने साल? 3 साल। उमर इब्ने अब्दुल अजीज 99 से 101 हिजरी। सही है। ये कौन है मौलाना? ये वही है कि जिसमें सब्बो शतम को मौलाए कायनात पर खत्म किया है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज। सही है। ये वो शख्स है कि जिसने क्या किया था? जो सब्बो शतम हो रही थी, अहादीस पर जो पाबंदी लगी थी, उस पाबंदी को खत्म करने वाला उमर इब्ने अब्दुल अजीज है। लेकिन इसकी हुकूमत भी कोई ज्यादा नहीं है। कितने साल है? 2 या 3 साल है ना? 2 साल है बल्कि। 100 और 101। यजीद बिन अब्दुल मलिक 101 से 105 और हिशाम बिन अब्दुल मलिक 105 से 125। इसी ने आपको क्या दिया है? जहर दिया है, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने, चूंकि 125 तक है और आपकी शहादत कब है? 114 हिजरी में। अजीम इल्मी तहरीक के बानी, यानी जो मदरसा हमें आज नजर आ रहा है, मदरसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उसकी बुनियाद किसने रखी है? हमारे पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम अपनी इमामत के दौरान इन्हीं नासाजगार हालात में हकायक व मारिफ इलाही की नश्र व इशाअत में मशगूल रहे और इल्मी मुश्किलात की तशरीह फरमाते रहे। हाँ, एक ऐसी वसी इल्मी जुम्बिश को वजूद बख्शा कि जिसने एक अजीम इस्लामी दानिशगाह की तासीस के मुकद्दमात फराहम किए और बाद में यही दानिशगाह जानते हैं फारसी में किसको कहते हैं? यूनिवर्सिटी है ना? वहां भी यही मुराद है। यही दानिशगाह आपके फर्जंद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत के दौर में अजमत के औज पर पहुंच गई। औज किसको कहते हैं? बुलंदी।
पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम इल्म, ज़ुहद और अजमत व फजीलत के एतबार से बनी हाशिम के तमाम बुजुर्गों में सरे फहरिस्त थे। इल्म और अखलाक के एतबार से आपके बुलंद मर्तबे की तस्दीक दोस्त और दुश्मन सभी करते थे कि इनके जैसा कोई अभी मौजूद नहीं है। इतनी ज्यादा रिवायात और अहादीस आपने इस्लामी अहकाम, तफसीर व तारीख और दूसरे मुख्तलिफ उलूम व मसाइल के मुताल्लिक नकल होकर बाकी रह गई कि जितनी उस जमाने तक इमाम हसन या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किसी भी फर्जंद से यादगार नहीं है। आज कुतुब अहादीस में जितनी अहादीस हमारे पांचवें इमाम और छठे इमाम से उतनी हदीस किसी और इमाम से मौजूद नहीं है। बाकी इमामों से आपको गिनती की हदीसें मिलेंगी, ठीक है, लेकिन इमाम जाफर सादिक और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से हजारों की तादाद में जितनी हदीसें देखेंगे, कोई किताब उठा के देख ले, उसके बयान करने वाले ज्यादातर कौन होते हैं? हमारे पांचवें या छठे इमाम अलैहिस्सलाम। छठे इमाम। इस दौर की अहम इल्मी शख्सियतें पैगंबर अकरम के बाज़ असहाब जो उस वक्त तक जिंदा थे, वो आपके हुजूर से फायदा हासिल करते थे। जाबिर बिन यजीद जुअफी, सही है, कीसान सजिस्तानी जो ताबिईन में से थे, और इब्न मुबारक, ज़ुहरी, औज़ाई, अबू हनीफा, मालिक, शाफई, ज़ियाद बिन मुंजिर, मेहदी जैसे फुक़हा ने कि जो आपके इल्म से मुस्तफीज हुए थे। मुस्तफीज हुए थे यानी फायदा उठाया था, फैज हासिल किया था। मुस्तफीज होना यानी फैज हासिल करना। आपके अक़वाल को बगैर वास्ते या बगाज मवारिद में वास्ते के साथ नकल किया है। अहले तसन्नुन के उलमा व मुअर्रिखीन मसलन तबरी, बलाज़री, सलामी, खतीब बगदादी, अबू नईम इस्फ़हानी की तारीफात और मूता जो उनके साहिह सित्ता में से है, मालिक, सुनन इब्न दाऊद, मुस्नद अबी हनीफा, मुस्नद मरूजी, तफसीरे नक्काश, तफसीरे ज़मख़शरी और ऐसी ही बहुत सी दूसरी किताबें कि जिनका शुमार आलम तसन्नुन की सबसे ज्यादा अहम किताबों में से होता है। पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम के पुरमग़्ज़ अक़वाल से भरी हुई है और हर जगह जुमला किस तरह से कि क़ाल मोहम्मद इब्न अली या क़ाल मोहम्मदुल बाक़िर देखने को मिलता है। किसमें किसमें मौलाना? तसन्नुन की किताबों में, तबरी, बलाज़री, सलामी, खतीब बगदादी की जो किताबें हैं, सही है, उनके मूता मालिक में, सुनन इब्ने दाऊद में, मुस्नद अबी हनीफा में, मुस्नद मरूज़ी में, तफसीर नक्काश में, तफसीर ज़मख़शरी, इन सब में हमारे इमाम के अक़वाल जो मुफीद अक़वाल हैं वो भरे पड़े। शियों की किताबें भी मुख्तलिफ उलूम व फ़ुनून में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के अक़वाल व अहादीस से ममलू है। ममलू माने भरी हुई, सही है, अरबी का लफ्ज़ है ये। मलआन, मलआन माने भरा हुआ। इमलाइल फराग, खाली जगह भरो, इमला पुर करो, तो ममलू उसी से है। ममलू है यानी भरी हुई। और जिस शख्स को भी इन किताबों के मुताल्लिक़ मुख्तसर सी वाक़ियत होगी वो इस बात की तस्दीक करेगा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम दानिश्वरों की नजर में, जो उलमा और दानिश्वर हैं, उनकी निगाह में इमाम की क्या अहमियत है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के इल्म दानिश की शोहरत ममलकत इस्लामी के मुख्तलिफ गोशों में, गोशा किसको बोलते हैं? कोना, यानी हर जिहत में, हर फील्ड में इस कदर थी कि आपको बाक़िरुल उलूम, इल्म दानिश के दरीचे और इल्मी मुश्किलात के गिरहें खोलने वाला का लक़ब हासिल हो गया। कह रहे हैं अहले सुन्नत के एक जय्यद आलिम इब्न हजर हैसमी लिखते हैं कि मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इतने ज्यादा इल्म मारिफ के मख्फी खजानों को आश्कार किया था
کہ احکام کے حقائق اور حکمت و لطائف کی تو اس قدر بیان کیا تھا کہ جو بد سیرت بے بصیرت افراد کے علاوہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. اسی لیے آپ کو علم کا شگافہ کرنے والا اور جامع اور علم کا پرچم بلند کرنے والا کہا گیا ہے. عبداللہ ابن عطا جو امام کے دور کے چیدہ شخصیتوں اور عظیم دانشوروں میں سے تھا، چیدہ شخصیتوں یعنی چنندہ شخصیتوں، کہتا ہے کہ مجھے علماء اسلام محمد بن علی کی محفل میں علمی لحاظ سے جتنا حقیر نظر آئے اتنا کسی دوسرے کے محفل میں نہیں. یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی محفل میں جتنا علماء اسلام حقیر نظر آتے تھے کسی اور کی محفل میں نظر نہیں آتے تھے، چونکہ علم کے آگے ان کے علم کے امام کے علم کے آگے ان کے علم کی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں نے حکم بن عتبہ کو کہ جس کے علم اور فقہ کی شہرت ہر طرف تھی، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اس حالت میں دیکھا کہ جس طرح سے ایک بچہ اپنے استاد عالی مقام کے سامنے ظاہر ادب طے کیے ہوئے تھا اور وہ آپ کی باتوں اور آپ کی شخصیت کا شیفتہ اور گرویدہ ہو گیا تھا. امام محمد باقر علیہ السلام اپنی باتوں میں اکثر قرآن مجید کی آیات سے استفادہ فرماتے تھے اور کلام الہی سے مشاہدہ پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے میں جو بھی بات بیان کروں گا اس کے متعلق سوال کیا کرو کہ قرآن مجید میں کس جگہ پر ہے تاکہ اس موضوع سے متعلق آیت کی نشاندہی کر سکوں. یعنی امام اگر مسائل بیان کر رہے ہیں تو آپ امام سے پوچھ سکتے ہیں. امام کہتے تھے، حکم دیتے تھے کہ تم سے مجھے معلوم کرو کہ اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا مدرک کیا ہے، قرآن کی کس آیت میں اس کا یہ حکم بیان کیا گیا ہے، اور میں اسے بتاؤں تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو. آپ کے شاگرد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.